दीपक गुप्ता नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हमारे बीच भावना गुप्ता जी हैं जो साइप्रस कंट्री के बारे में आज हमें बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले बताएं कि साइप्रस कंट्री तो ये प्रोजेक्ट क्या है, मतलब बेसिकली क्या है ये चीज? Cyprus is a very nice island country next to Europe, and the government of the country is promoting Cyprus by giving PR, that is permanent residency program. And in that, if you buy or invest in a property, 300,000 euro, which is equal to 2.4 crore rupees के आसपास, ऊपर नीचे कभी हो सकता है, and you can buy a residential plot, you can buy a commercial plot, you can buy properties, and then 3 generations of your family will get here. जैसे for example आपके लिए आपको daughter को मिला, आपको parents को मिला, her children and her in-laws will also get. So 3 generations, like a full family chain, gets a PR lifetime. Yes, and the benefits are, Cyprus is a very luxurious country, but with very simple living. Like you can live there with. You earn like 1,700 euros per month, and you can have a good life. It's like that. From the business point of view, it's very good. There are a lot of imports and exports companies who are into exports and exports. Their headquarters is in Cyprus. When you have the headquarters in Cyprus, you also get the benefit of double taxation treaty which India has with Cyprus, which means अगर वहाँ पे आप tax दे रहे हो तो इंडिया पे आपको पे नहीं करना है. So you can keep the head office there, and you can have your business in India. Yeah. So there are a number of other. It's a tourism country, so there are lots of benefits. Once you get the PR, you get free education till your masters. So it's just not school, it's still masters. You also get like free medical, and you get long-term Schengen visa. So many benefits. So जब हम इसके साइप्रस की बात करते हैं तो सबसे मेजर आपने बताया लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, और हम अपने इंडिया के साथ उसको अगर कंपेयर करें तो उसमें सबसे बेस्ट पॉइंट्स क्या क्या आते हैं? देखिए, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इसमें सारा चीज है, तो हम कंपेयर तो नहीं करेंगे. बट साइप्रस इज अ लग्जूरियस. If you have been to Dubai, it's a luxurious version of Dubai. So it has concrete jungles as well as mountains. It has sea, it has beaches. You can ski over there. You just name the part of nature and it's there, together with the constructions and the city the way it's planned. ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या मान के चलते हैं, कितनी पॉपुलेशन है? वैसे तो गूगल पे सब है, फिर भी थोड़ा सा आपको. Yes, the population is like 10 million. 10 million क्या? Indians तो सभी जगह रहते हैं. Like Limassol is very popular with Indians. Indian restaurants है, Indian temples है, Indian. अच्छा, वहाँ इंडियन टेम्पल्स ऑलरेडी है, इंडियन पॉपुलेशन है. तो अप्रॉक्स कितने लोग मान के चले वहाँ पे? Indian around more than in Limassol itself. I'm talking about Limassol. More than 1 lakh. More than 1 lakh. तो इंडियन टेम्पल्स अभी हैं ऑलरेडी, तो आई थिंक तो फिर तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए हो सकता है. Very nice opportunity. तो ट्रैवल डिस्टेंस कितना काउंट करते हैं, कितना? Travel, if you're taking a direct flight, it's around 7 hours. Otherwise, people takes via Dubai or via Qatar. तो उसमें 3+3 हो जाता है. From Delhi to Dubai and Dubai to. तो सबसे बेसिकली जो अगर हम बात करते हैं हम इंडियन यहाँ के लोगों के रहन सहन के स्तर के बारे में, क्योंकि यहाँ की मेंटालिटी डिफरेंट है और यूरोपियन मेंटालिटी डिफरेंट है. तो अगर यहाँ का कोई भी बंदा पीआर लेके जाएगा तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके कोरिलेट बन सकता है मेंटल लेवल में या कैसे? Of course. First of all, Indians by nature are very friendly. We can adopt very fast. And इसमें adopt तो कुछ करना ही नहीं है. वहाँ पे अपना घर है, अपने हिसाब से खाइए,
जो भी खाना है, you know, सांभर, चावल, दाल, whatever. So it's not that you have to take their culture. You have your own house. There are Indian restaurants. There is temple. There is Indian community club. तो सारा चीज तो इसमें ज़्यादा एडजस्ट कुछ है नहीं. मीन्स अगर उनको बच्चे- इंडियन फूड भी वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल होगा अगर लोग जाते हैं अवेलेबल होगा. तो इसी टाइप से. क्योंकि अक्सर मैं भी एक दो बार यूरोप गया था तो वहाँ पता चला कि रोटी भी नहीं मिलती थी, रोटी जानते भी नहीं थे क्या होती है. तो फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है. तो वहाँ पे जब जाएंगे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम कुछ समय तो English आएगी. is very common in Cyprus. English they English is speak. the main language, and English I think so all Indians they know. Not a very big deal. So English is the language. And yeah, somebody while going थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कहाँ जाएगा, कहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेगा, वो एक अलग विषय है. And then the best part, we are not telling you कि buy the property यहाँ से. We are ready to take you for a tour. We are taking you for a tour, hosting you in our 5-star property, and we are showing you the lifestyle. Okay. We are showing you the properties ताकि एक अच्छा feasibility हो जाए in terms of business. तो क्या होता है, once you become a PR, you can also own the business. नहीं तो you have to take a Cypriot partner. And yeah, so this is it's good opportunity. You see it and then you decide. We show you the properties, different properties, and then you decide. तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि भी आपको एकदम इन्वेस्ट नहीं करना. आप घूमने जाए, पहले वहाँ जाए, आपके साथ लोग जाएंगे, आप उनको ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं वहाँ पर. So एक तरह से साइट विजिट हो you गया. should go with a mindset to माइंडसेट invest. तो मस्ट है कि So जो if you जाएगा. like any property, you can give a token amount or Yes. whatever and come back and then transfer the funds. तो उसके लिए पहले थोड़ा सा जाकर देख सकता है. Yes, you can choose a property and then you can plan it out कि कैसे करें, कैसे business and you know family कैसे the whole thing can be. तो वहाँ बिजनेस सेटअप में भी फिर आपका सपोर्ट रहेगा Of साइप्रस course, के yeah, अंदर. yeah. अगर For कोई any अपना business बिजनेस सेट setup, करना चाहता है. for any and that's what we are doing with most of the clients. जिनको PR चाहिए and business भी चाहिए, we are supporting them to set up. We are supporting them with all the know-how, the contacts and everything. So it is more kind of more easy for them. तो बेसिक पीआर के सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे? PR is a second home for you. Number one. Number two, with the PR, you get long-term visa with for Schengen, and you can do business very easily. Plus, free education, free medical. So these are the biggest benefits. And PR itself, a permanent residency. सोचिए like 2.34 करोड़ के अंदर अगर आपको permanent residency मिल जाएगा lifetime for 3 generations. नथिंग लाइक दैट. No other countries like offers this. Very few countries offers. तो साइप्रस We इज do द Greece also, अच्छा. same program. Okay. So very few countries offering PR. And क्या होगा by next year these are government programs. So the amount is set by the government कि इतना invest करना है. So this may just go up. Same like EB5 in US. So this is the best, starting point from This your is the best time to invest. Invest, Yeah. तो ये आपका बहुत अच्छा एक ऑप्शन है सभी के लिए पीआर लेना. जितने भी लोग पीआर में इंटरेस्टेड हैं, पीआर लेना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो हम भावना जी से संपर्क कर सकते हैं या आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी अपना क्वेरी डाल सकते हैं और हम आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. आपका स्वागत. हमारे साथ जैन साहब हैं जो MSME चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया को हेड करते हैं और भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज को हेड करते हैं. तो आज साइप्रस कंट्री के बारे में को भी हेड कर रहे हैं. साइप्रस कंट्री का जो प्रोजेक्ट है इंडिया में आज लॉन्च हो रहा है, उसको भी आज जैन साहब RP जैन जी हेड कर रहे हैं. तो आज जानते हैं थोड़ा सा जैन साहब के अपना व्यूज क्या कहते हैं कि वो. तो आप बताएं थोड़ा साइप्रस कंट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और कैसे आम आदमी को फायदा दे सकता है. जैसे हमने यहाँ पे आके विजिट किया और जो बच्चे साइप्रस ग्रुप के यहाँ पर आए हुए हैं और वो जो अपनी सूचना हमें अवेलेबल करा रहे हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चन अपने बंदों की तरफ से उनके यहाँ रेज किए हैं कि भाई एक तो हमें जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में देने की फैसिलिटी दिलाई है. दूसरे जो है साइप्रस जैसे एक अच्छा कंट्री है और यूरोप में आता है ये, वहाँ से शेंगेन वीज़ा इजीली अवेलेबल है. तो वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल
क्या पोजीशन है, इंडस्ट्रियल एरिया कितने बड़े थे, लेबर की क्या पोजीशन है, ऑटोमेटिक प्लांट वाइबल है या सेमी ऑटोमेटिक प्लांट भी वाइबल है। तो हमारा जो यहाँ से व्यापार जगत है, इंडस्ट्री उद्योग जगत है, उसका हम वहाँ पे टाई अप कैसे बढ़वा सकते हैं ताकि यहाँ के लोग जो है काम को अपने बढ़ाएं। तो इसके लिए आज हमने ये निश्चित किया है कि भाई जो हमारी ऑफिशियल एयरलाइन है वो एमिरेट्स रहेगी, उसके साथ साथ एयर इंडिया को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी फ्लाइट्स बढ़ाएं। तो जैसे साइप्रस कंट्री के लिए वो पीआर वीजा की बात भी चल रही है कि पीआर वीजा उन लोगों को मिलेगा, तो उसके लिए उसके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पीआर वीजा किसको मिल सकता है? पीआर वीज़ा के लिए जो इन्होंने हमें मेनली बताया है, पासपोर्ट की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल्स वगैरह थोड़ा सा रिक्वायर्ड है। तो वो चीज़ें तो आज के दिन जो भी एक आदमी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निकलेगा वो तो उसके पास सब चीज़ें, बैंक बैलेंस भी है, सोर्सेज भी है और ऑलरेडी वो 10-20 कंट्रीज़ में घूमता भी है, जाता भी है। एक उम्र के बाद बंदा थोड़ा ये चाहता है कि कोई ऐसी जगह पे एक सेटअप एक्स्ट्रा बना लूँ जहाँ महीना 2 महीना ठहरे, जहाँ पे अच्छी लाइफ हो, शांत लाइफ हो। शांत। अगर वहाँ थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल जाता है तो मैं ये समझता हूँ हमारे जो भारतीय नागरिक हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करें। क्योंकि लाइफस्टाइल तो थोड़ा फर्क है, इंडिया की लाइफस्टाइल और वहाँ की लाइफस्टाइल में तो बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो अब जैसे बच्चे जो जिनको पीआर वीज़ा मिलेगा, पीआर बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंशियल वीज़ा उनके पास हो गया, तो उसके बाद उनकी एजुकेशन वगैरह में क्या इफेक्ट है, वहाँ पे क्या उनको सोर्स आज हमने एक क्वेश्चन ये भी रेज किया है कि भाई हमारे यहाँ से मेडिकल के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं साइप्रस की जिनका हम इंडिया में टाई अप बढ़वा सकते हैं, या तो बच्चे यहीं पढ़े उन्हीं यूनिवर्सिटियों से या फिर साइप्रस जाएं तो उनका कितना खर्चा आएगा। तो मेरे ख्याल ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूक्रेन पहले बच्चे जाते थे हमारे, तो यूक्रेन तो ख़त्म हो ही गया और शायद रशिया में भी बड़ा इस टाइम दिक्कतें चल रही हैं, तो एक साइप्रस बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक नई राह खुल सकता है। हमारा विचार ये है कि भाई हम जैसे MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ट्रेड प्रमोशन बॉडी है, तो हम और साइप्रस इंडो साइप्रस फ्रेंड सोसाइटी की तरह काम करें। वो हमारे बारे में अच्छा सोचें, हम उनके बारे में अच्छा सोचें, ताकि दोनों का आदान प्रदान हर तरीके से, अगर व्यापारिक बढ़ेगा तो फिर कल्चरल भी बढ़ेगा, तो हर तरीके से हम दोनों समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे बहुत सारे कंट्रीज में से आपके माइंड में फिलहाल साइप्रस ही क्यों है? साइप्रस की जो रिपोर्ट है वो और कंट्रियों से मतलब अच्छी आई है, लोग उसको अच्छा मान रहे हैं, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से चेष्टा की है कि भी हम इंडो साइप्रस सोसाइटी पे काम करें और थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स थोड़े दिन के बाद क्या आते हैं वो हम सबको डिस्क्लोज करें। तो जैसे लोग साइप्रस जाएंगे, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो जिस तरह सबको एक आदत होती है इंडियन को खासतौर से, जब तक उसको प्रॉपर देख ना ले तब तक उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो क्या ऐसा भी प्लान है कि उनको वहाँ तक आप लेके जाए या कैसे भी इनका एक? हमारे पास गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीम है, वो चाहे साइप्रस भी इन्वॉल्व है और इंडिया भी इन्वॉल्व है। अगर हमारे व्यापारी भाई 10 व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी कंट्री में विजिट करते हैं ग्रुप बना के अपने व्यापार की प्रमोशन के लिए, तो उनका उसका खर्चा रिइंबर्स होता है। तो हम ये फैसिलिटी अपने उद्योगपति भाइयों के लिए अरेंज कराएंगे कि भाई वो इस विजिट को, जो बिजनेस प्रमोशन विजिट है, उसको हम रिइंबर्स कराएंगे। तो ये थे बहुत अच्छा से इन्होंने सब चीज़ों के जवाब दिए और हम उम्मीद करेंगे कि साइप्रस के बारे में और जब जानकारी चाहिए तो आपको भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे बीच राजकोट बसोया जी हैं। तो जो साइप्रस के बारे में एक हमारा व्यू चल रहा है, तो जानते हैं राजकुमार जी से कि साइप्रस के बारे में थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बताएं कि साइप्रस को आपने चुना एज ए PR मिल रहा है, तो इसका मेन बेनिफिट्स क्या है?
और साइप्रस को ही क्यों चुना बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज के बारे में? सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस इवेंट में आए, उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो साइप्रस कंट्री के बारे में पूछा है, इसके लिए मैं ऑल ओवर आपको इसकी जो खूबियाँ क्या बताऊँ कि साइप्रस में हमारी एक इतनी अच्छी कंट्री है कि एक तो क्राइम फ्री कंट्री है, दूसरा वहाँ पर आप वेदर बहुत अच्छा है, वहाँ जैसे 30 to 30 के आसपास से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, मौसम काफ़ी खुशगवार, जैसे हमारे यहाँ वसंत ऋतु होती है वो वाला है, और कंप्लीट इंडिया की तरह मौसम है वहाँ पर, सारे ही मौसम है, बर्फ का सीजन कुछ एरिया में है, गर्मी सर्दी बरसात सारे जो। दूसरा एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है, तीसरा वहाँ फ्लावर्स वगैरह इंडिया में बहुत इम्पोर्ट होते हैं। जो भी बंदा हमारे थ्रू प्रॉपर्टी लेता है, सबसे प्लस पॉइंट तो उसके लिए यह है कि हम उसको पीआर भी साथ में दे रहे हैं एज ए गिफ्ट। जी बिल्कुल गिफ्ट दे रहे हैं। जो पीआर में हम जैसे आप लेते हैं तो आपके बच्चे फ्री ऑफ हो गए हैं, आपकी मम्मी पापा और आपके जो सास ससुर हैं उनको भी हम सास ससुर को साथ में पीआर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये पहला इशू है कि कई सास ससुर को बेनिफिट मिल रहा है। जी। और नंबर 2, इसमें आपका एजुकेशन हेल्थ सब फ्री हो जाएगा। तीसरा, आप बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं उसमें आप साइप्रस में एंड ऑल ओवर यूरोप में। अगर वहां की आप पीआर लेते हैं तो ऑल ओवर यूरोप में आप कहीं भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं लीगली। तीसरा एक्सपोर्ट, और दूसरा आप इंडिया से हैं और आप वहाँ सेटल होते हैं, पीआर लेते हैं तो इंडिया में बहुत चीज इंपोर्ट होती है वहां से, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, हमारा अनाज हो गया, फ्रूट्स हो गई, कम से कम दुनिया भर के आइटम है जो वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, बिजनेस व्यू, दूसरा आपकी फैमिली व्यू, दूसरा आपके भविष्य के बारे में। इंडिया तो हमारा देश सबसे अच्छा है, ये मेरा भारत देश है, लेकिन हम बाहर भी कहीं इनकेस लोग दुबई वगैरह जाते हैं, लेकिन दुबई से लाख गुना अच्छा साइप्रस। मोस्ट वेलकम फॉर साइप्रस। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले तो बसोया जी खुद अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, ये खुद कुछ फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रहे हैं, तो नेचुरली कि इनका जानकारी मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज के बारे में एक अच्छा विजन रखते हैं। तो इसी के अंदर एक चीज बताए कि जब लोग पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? सर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए मेरे को, उनका वाइट पैसा होना चाहिए, 2.5 करोड़ रुपए उनके पास, और हम खाली पीआर में कोई पैसा नहीं ले रहे हैं उनसे। पीआर मैंने आपसे कहा कि हम गिफ्ट में दे रहे हैं उनको, उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसी प्रॉपर्टी में। और प्रॉपर्टी काम आपको पता ही है, मैं लंदन में भी कर रहा हूँ, कनाडा में भी कर रहा हूँ, दुबई में भी कर रहा हूँ, ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉपर्टी का काम है अपना, दिल्ली, एनसीआर, इंडिया। लेकिन पीआर में आपको जो दे रहा हूँ, मैं आपको साइप्रस में, ग्रीस में आप कोई भी प्रॉपर्टी मुझसे 2.5 करोड़ तक की लेते हैं, मैं देने को 50 लाख की प्रॉपर्टी भी दे दूंगा आपको, लेकिन आपको जो पीआर गिफ्ट में पीआर आपको दूंगा वो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे दूंगा। 2.5 करोड़ जी। तो जब कोई भी बंदा वहाँ पे प्रॉपर्टी लेता है तो उसके बाद कोई किसी टाइप का बिजनेस वहाँ कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाता है, तो उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज होनी है गवर्नमेंट की, तो क्या उसमें भी आपका एक सपोर्ट रहेगा उसको? जी जरूर, मैं सारे सपोर्ट कराऊंगा। अगर आप इनके इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ आपके सारे इन्वेस्ट मैं कराऊंगा आपको, और आपको रेंट पे भी मैं चढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी। इनके बिजनेस में कोई दिक्कत आपको, वहाँ दुनिया भर के बिजनेस है, कोई भी आप बिजनेस करना चाहेंगे तो उसमें पूरी सपोर्ट मेरी कंपनी करेगी, मैं करूंगा आपको। और दूसरा, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास में, इंडियन आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास में, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, रिटर्न वगैरह होनी चाहिए आपके पास में, मतलब वाइट के आपके पास 2.5 करोड़ होनी चाहिए, तो मैं आपको 2 महीने में पीआर गिफ्ट दे दूंगा। पीआर गिफ्ट मिल सकता है। तो अभी जैसे एक लोगों की आदत भी होती है कि कोई चीज परचेज करते हैं तो उसको 2 बार देखना भी चाहते हैं, तो क्या ऐसी भी हमारे पास कोई फैसिलिटी है कि जो वो लोग उस जगह को जाकर विजिट करके आए, देख पाए, उसके बाद अपना मन बनाए? जी जरूर सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बिना देखे हम क्यों चीज लेंगे, जब हम देखेंगे तो दिखेगी तो बिकेगी। जी सर, मैं आपको सर बता दूं कि हम आप लोगों को जो भी देखना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट में दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी। आपने खाली अपने एयर टिकट लीजिए अपना, और वहाँ सारी रहने की व्यवस्था मेरी होगी, आपको खाना पीना रहना पूरा घुमाना, पूरा साइप्रस को मैं घुमाऊंगा। 3-4 दिन का आपको पूरे खाना पीना पूरा साइप्रस को घुमाऊंगा, सारी बिल्डिंगें दिखाऊंगा, सारी बिजनेस दिखाऊंगा, सारा बिजनेस समझिए, वहाँ पर आप रहना सहना समझिए, कैसे रहते हैं लोग, कैसे वहाँ का मॉस्फियर है, कैसे वहाँ की लैंग्वेज है, क्या चीजें हैं, सब चीज देख सकते हैं आप। आपका माइंड करे तो फिर आप हमसे लीजिए ना, तो दिखाएंगे आपको, समझाएंगे, आप समझेंगे तभी आप हमसे लेंगे।
तभी उसका आपको कोई पैसा नहीं, ओनली टिकट्स। Only दूसरा टिकट भी आपका फ्री होगा। आप हमसे जब भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपका टिकट विकेट सारा खर्चा हम आपको दें, तो उसमें से वापस रिम्बर्स कर देंगे जी, जी, इन शॉर्ट कह सकते हैं। एडजस्ट कर देंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वहां पे मन बना रहे हैं कि इंडिया में अगर आपने ऑलरेडी 2 घर ले रखे तो तीसरा घर अगर आपको लेना है तो उसको वाई इन इंडिया, आप किसी इंडिया से बाहर कंट्री में जाकर, एक अच्छा प्लान है ये, जा सकते हैं हम लोग। और एक उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि साथ साथ आपको इतनी प्रॉपर्टी के पैसे में PR फ्री मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट इनकी कंपनी की तरफ से साइप्रस कंट्री के लिए इंक्लूड हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद, थैंक यू।